اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ ایسے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد ضرور کیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب جمعیت علماء نے بتایا ہے کہ آئندہ کل یعنی 21 مئی 2022 صبح 11 بجے علاقہ کوکن مہاراشٹر کے مہاڑ شہر میں ڈاکٹر امبیڈکر ہال جو شیواجی چوک کے قریب ہے، وہاں پر حضرت مولانا ارشد مدنی پہنچ رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور ایک عظیم الشان پروگرام ہوگا۔ پروگرام کس بات کا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سال 2021 میں جو سیلاب آیا تھا علاقہ کوکن میں، جس میں رتنا گیری ضلع اور رائے گڑھ ضلع مہاراشٹر کی کافی متاثر ہوئے تھے اور بہت بڑا نقصان ہوا تھا، اس موقع پر جمعیت علماء ہند جو ہے ہر طرح سے تعاون، مدد، کھانے پینے کی چیزیں، اوڑھنے بچھونے کی چیزیں، برتن، ہر طرح سے تعاون لے کر جمعیت علماء وہاں پر پہنچی تھی۔ اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ 42 سے 45 گھر جو ٹوٹ گئے تھے، تو کچھ گھر تو ایسے ہیں جن کو پورا بنا کر دیا جا رہا ہے اور کچھ تو ایسے ہیں جن کی مرمت کی جا رہی ہے۔ تو الحمدللہ 42 سے 45 گھر کے قریب جمعیت علماء ارشد مدنی تیار کر چکی ہے اور ان کی چابیاں حضرت مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کے ہاتھوں ان لوگوں کے متاثرین کے سپرد کی جائے گی۔ تو آئندہ کل 11 بجے جو آس پاس کے لوگ ہیں، جمعیت کے محبین، مخلصین، ذمہ داران، کاریہ کرتا، وہ اس موقع پر اس پروگرام میں ضرور موجود رہیں۔ میں خود بھی یہاں سے آج رات میں مہاڑ کے لیے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ نکل رہا ہوں۔ میری پوری ٹیم آئندہ کل کے پروگرام کو بھی وائرل نیوز کے کیمرے میں قید کرے گی۔ اور خاص بات آپ کو یہ بتا دوں کہ ان 42-45 گھروں میں سے 12 سے 13 گھر تقریباً یا 15 گھر برادران وطن ہندو بھائیوں کو بھی دیے جائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء وہ تنظیم ہے جو ملک کی آزادی میں اگلی صفوں میں تھی، پہلی صف میں تھی، پہلی لائن میں تھی، اور آزادی کے بعد سے آج تک جمعیت علماء ہر موڑ پر ذات اور دھرم دیکھے بغیر اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے چلی آ رہی ہے۔ آئندہ کل ہندو بھائیوں کو بھی مولانا کے ہاتھوں سے ان کے گھروں کی چابیاں دی جائے گی۔
आइए दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ज्ञान वापी मस्जिद तनाज़े को लेकर। जी हाँ, ज्ञान वापी मस्जिद वाराणसी अदालत में समाअत पर रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला आज इस पर मामले पर गौर किया जाएगा। वाराणसी अदालत अब 23 मई को इस मामले की सुनवाई करेगी। सिविल जज की अदालत में वीडियोग्राफी सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि शफीकुर रहमान बर्क जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, समाजवादी पार्टी के कदावर नेता है, 91 ईयर 91 साल इनकी उम्र है और बड़े दबंग लीडर है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि अगर ज्ञान वापी मस्जिद को सील करने की कोशिश की गई तो हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी। वहीं पर आरएसएस का शरारती बयान ज्ञान वापी को लेकर आया है कि ज्ञान वापी मस्जिद मामले पर आरएसएस ने बयान दिया है कि तारीखी हकायक को सही तनाजुर में रखने का वक्त आ गया है। तो लोग कह रहे हैं कि आरएसएस की सही तारीख भी अब रखने का वक्त आ गया है कि मुल्क को बनाने में, सजाने में, संवारने में और आज़ाद कराने में आरएसएस का रत्ती बराबर भी हिस्सा नहीं रहा, बल्कि अंग्रेजों के कांधे से कांधे मिलाकर गुलामी और चापलूसी और वादा माफ गवाह बनने का काम आरएसएस करती रही। तो आरएसएस की भी हकीकत बताने का वक्त अब आ गया है। आइए नाज़रीन, मथुरा शाही ईदगाह को भी लेकर मैं कहा ना कि ये नफरती चिंटू रुकने वाले नहीं है जब तक कि खुद पीएम इन्हें न रोके। लेकिन पीएम जी की खामोशी खुद बता रही है कि वो चाहते हैं कि ये सब चलता रहे। तो खैर, अब मथुरा शाही ईदगाह को लेकर ये खबर आ रही कि मथुरा शाही ईदगाह हटाने की जो दरखास्त है वो समाअत के लिए मंजूर हो गई। ईदगाह की 24 घंटे निगरानी के आदेश भी आ गए हैं। वहीं पर यूपी के 18 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एएसआई को भेजने की दरखास्त की गई है। जिली अदालत ने यह फैसला सिविल जज के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्त पर दिया है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद तनाजे पर भी अदालत में समाअत होगी। यानी मथुरा शाही ईदगाह का भी अब मुद्दा बनता जा रहा है या बनाया जा रहा है। यानी असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये मुगलों की बनाई हुई मस्जिदें, इमारतें बड़ी काम आ रही है और हुकूमत के लिए रोजी रोटी का और कुर्सी के बचाने का बेहतरीन जरिया बन गई है। यानी मुगल मर गए लेकिन रोजी रोटी का जरिया छोड़ गए। नाज़रीन, टेरर फंडिंग मामला, टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक को कसूरवार ठहरा दिया गया है, मान लिया गया है। एनआईए अदालत का फैसला सामने आया है। अब यासीन मलिक को क्या सजा दी जाएगी, इस सजा के तयन पर 25 मई को अदालत में बहस होगी। यानी दिल्ली की एक अदालत में यासीन मलिक ने दहशतगर्दी की माली मुआवनत की है, माली मदद की है, फंड जमा किया है, दिया है। इस केस में इल्जामात को कबूल कर लिया था, जिसके बाद अदालत ने आज मलिक को मुजरिम करार दे दिया और 25 मई को क्या सजा दी जाए ये मामला सामने आएगा, ज़ेरे बहस होगा। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। अल्लाह जमीयत उलमाए हिंद को अल्लाह बेहतर बदला दे। आप जानते हैं कि जब कोरोना मुल्क में आया तो उस वक़्त भी हमारे यहाँ की गोदी मीडिया, नफरती मीडिया ने जो है हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला, खेल खेला, नीच और घटिया हरकत की, मुसलमानों को बदनाम किया। तो उस मौके पर भी हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने मीडिया के खिलाफ बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दाखिल की थी। अब खबर आ रही है कि मीडिया के खिलाफ जमीयत की पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट अलहदा समाअत करेगी। मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों के दरमियान, हिंदू भाइयों के दरमियान मुल्क में नफरत फैलाने की जो दानिस्ता यानी जानबूझकर साजिश करने वाले टीवी चैनल्स है, प्रिंट मीडिया है, इनके खिलाफ मौलाना अरशद मदनी सदर जमीयत उलमा की हिदायत पर 16 अप्रैल 2020 को पिटिशन दाखिल की गई थी और अब जमीयत उलमा की इस पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट अलहदा समाअत करेगी। आइए, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जहां कदावर नेता नवजोत सिंह सिद्धू
को 1 साल की सज़ा सुनाई गई। और यह केस कौन सा है? 30 साल पुराने केस में अब 1 साल की सज़ा सुनाई गई। नवजोत सिद्धू ने कहा है कि खुद को कानून के हवाले कर दूंगा, यानी अदालत का फैसला आने पर उन्होंने रिएक्शन जाहिर करते हुए ये कहा है कि मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। नाज़रीन, रियासत बिहार के दरभंगा से हमारे रिपोर्टर जीशान इलाही ने बताया, बड़ी शर्मनाक खबर वहां से आ रही है कि एक 9 साल की बच्ची की इस्मत दरी की गई। जी हां, दुष्कर्म हुआ और इस मामले में अब टीचर को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। दरभंगा में पॉक्सो की एक खुसूसी अदालत ने 65 साल 65 ईयर ट्यूशन टीचर को 9 साल की बेटी के इस्मत दरी रेप के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई है और इस टीचर पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। जुर्माने की यह रकम मुतअस्सिरा को दी जाएगी। इसके साथ ही अदालत ने रियासती हुकूमत को इस बेटी को 6 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का भी हुक्म दिया है। 17 जुलाई 2018 को हयात घाट थाने की पुलिस ने मामला सामने आने के बाद 2 दिन बाद मुल्जिम टीचर को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया था और अब अदालत से उसके मामले पर उम्र कैद की सजा का फैसला आया है। आइए नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। जी हाँ, राज ठाकरे जो नफरती भोंगा बजा रहे हैं, अपोजिशन का महाविकास अघाड़ी के लीडरान का कहना है कि यह नफरती भोंगा भी किराए का भोंगा है या न किसी के बोलने पर बज रहा है। लेकिन अब खबरें आ रही है मनसे की जानिब से अलग अलग जगहों पर मुंबई में पोस्टर्स लगाए गए हैं और मनसे ने यह लिखा है उन पोस्टरों में कि राज ठाकरे को अगर तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की गई तो महाराष्ट्र जल जाएगा। जी हाँ, इसके अलावा कोई अच्छा काम भी ये लोग नहीं कर सकते। इस तरीके के लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये गीदड़ भपकियां हैं जो लगातार दी जाती रही है मनसे की जानिब से और अभी इसलिए दी जा रही है कि राज ठाकरे को पूरी तरीके से बड़ी पार्टियों का, बड़ी ताकतों का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए ये नफरती भोंगा बज रहा है। लेकिन खैर, मैं तो ये कहूँगा कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से अच्छा है कि इन पर ध्यान न दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको याद है कि राज ठाकरे यहां से भोंगा बजाते हुए अयोध्या में भी भोंगा बजाने वाले थे, लेकिन अयोध्या में बीजेपी के एक सांसद ने कह दिया कि जब तक कि तू माफी नहीं मांगेगा उत्तर भारतीयों से तब तक के तू आ नहीं सकता है। 17 अप्रैल को ठाकरे ने पुणे में ऐलान किया था कि वो भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए 5 जून को अयोध्या जाएंगे, लेकिन फिलहाल अयोध्या यात्रा उनकी थमी हुई है क्योंकि वहां से भी हिंदुओं ने, बल्कि भाजपा के लीडर ने धमकी दे दिया है। आइए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। जी हाँ, मुंब्रा वगैरह से खबर आ रही है और महाराष्ट्र के कई इलाकों से खबरें आ रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने जबरदस्त अंदाज में उनके कार्यकर्ताओं ने एहतजाज किया और दोनों तंजीमों ने, यानी एसडीपीआई और ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने अदालत पर भी जानिबदारी का इल्जाम लगाया। आइए, आप जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में, मस्जिद के हौज में, तालाब में जहां लोग पवित्र होते हैं, वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मुगल दौर में खूबसूरत वहां पर फुव्वारे बनाए जाते थे। अब वो फुव्वारा भी शिवलिंग हो गया और उस शिवलिंग को लेकर लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। मैं मजाक बनाने वालों से फिर 5वीं मर्तबा मैं ये कह रहा हूं कि प्लीज किसी के धर्म का मजाक न बनाएं, लेकिन धर्म के मानने वालों से ये भी कहूंगा, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, कि कुछ ऐसी हरकतें ना करें कि तुम्हारे हमारे धर्म का मजाक बन जाए। खैर, इस शिवलिंग पर तबसरा किया था प्रोफेसर रतन लाल ने। जी हाँ, प्रोफेसर रतन लाल ने एक दिन पहले सोशल मीडिया पर ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग मिलने पर काबिल एतराज पोस्ट किया था। अब उसको लेकर खबर आ रही है कि प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी सी पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।